कैमरे का बैग बाहर आ रहा पीछे। अरे यार ऊपर से नहीं ढका सिर का दर्द है। शमीम साहब बोलते थे मेरा कहीं पूछा था उनको कमरा सेंटर खोलने के लिए कमरा नहीं है, तो जो आदमी के पास कमरा खाली है तो सेंटर खोलने के लिए कमरा चाहिए। ही इज गाइस वेरी शमीम साहब इंडोर से वो रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट है, वो बोले थे वेरी पूर पीपल रहते हैं उन लोगों के पास रूम खाली रूम नहीं रहते। बारिश लटक प्लीज आपका भी हाथ लगा है। सर गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू पीछे आओ, कैमरा है पीछे आओ। सर दिस इज योर सीट, यू आर जज। सर बिठाइए। I am Member Secretary, Telangana State Legal Service Authority. As per the instructions of His Lordship, Honorable Sri Justice Sujay Pal Garu, we started this community mediation training program in Telangana. First, we started in Nizamabad and Kamareddy district. There, nearly 110 volunteers have attended the 3 days training session. That session was taken over by Mohammad Shamim Garu. He is from Indore, Madhya Pradesh. He is a retired principal district and sessions judge. On the request of Telangana State Legal Service Authority, all the way Mohammad Shamim Garu have come down to Nizamabad district, imparted training to 110 volunteers in 2 districts. The main aims and objectives of this community mediation is no simple case. Simple case should go to the court. It should be decided in between the 2 parties by the community elders only, because the community elders knows both the families, they know their background, and it is easy for the community elders to settle the dispute. So with that aim, this community mediation training program has been started in Telangana. First, it was started in Kerala, from there to Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, Indore and Jabalpur districts, the community mediation centers are more in number. The statistics given by Mohammad Shamim Garu, the principal district and session judge retired, is more than 5,000 matrimonial disputes were settled before the community elders. In most of the communities, they have set up the community mediation centers within their locality. Somebody who is having 2 or 3 more houses, he gave 1 room or 2 rooms for establishing the community mediation center. There, the community volunteers like sir, they have come for training. Those trained volunteers established the centers and resolved the more than 5,000 matrimonial disputes only, not other disputes. Apart from other disputes, 5,000 matrimonial disputes were settled in either way. So मिलके रहना, नहीं तो डाइवर्स ले लेना, कोर्ट में नहीं जाना, केस सेटल, डिस्प्यूट सेटल करके मिलके जीना है, नहीं तो अलग अलग होना. Wife, she can lead her life independently, husband can lead her life independently, but both and wife and husband should not go to the court seeking for divorce or for restitution, because if the matter is placed before the court, you all know
how much time it is taking to resolve that dispute. It may take 2 years, 3 years, 5 years sometimes. So we are wasting our age. At the same time, we are spoiling the life of the children by fighting with each other before the courts. So that should not be there. If a matter is settled before the community elders, it is final. Like in that, with that aim, we have started here in Nizamabad and Nizamabad district only 140 matters were filed before the 4 community centers, mediation centers. One is in Armoor, one is in Bodhan, 2 are in Nizamabad. In Bodhan, on the day of establishing the community mediation center itself, one mother came and filed a petition before the volunteers against her own sons. The son has taken the ATM card and other cards from the mother. He is utilizing her money, not providing food, not giving any money, not getting medicines to mother. He is utilizing. Then the matter placed before the community elders resolved that dispute, and the judge, additional district judge at Bodhan, passed an award also, basing on the terms of settlement. So like that, we can resolve most of the issues with the cooperation of, with the participation of our community leaders. So, in that process, here in Hyderabad, as per the directions of His Lordship, Honorable Justice Sujay Pal Garu, we have imparted training more than 150 volunteers. We have not paid anything to them, just we provided lunch and breakfast. On their own, they have come to attend the training session for 3 days. Now some of them already have established the centers. From Muslim community, this is the first center. I congratulate the persons behind this establishment of the Shia Community Mediation Center. I request all the elders, please suggest to the persons who are in fighting with the disputes, approaching the courts. Before going to the courts, please suggest them to visit the community mediation center. They will act unbiasedly, impartially, no bias. Without bias, they will dispose the applications as per the procedure of mediation. So, with this, I want to conclude my the addressing. I request, Sir, President of the community is here. Please guide your fellow people to approach the community mediation center before knocking the doors of an advocate or court. If the matter is not settled before the community mediation center volunteers, then they can go to the court or any other tribunal or any other place. But first utilize the services of these trained mediators. They have given training how to start the dialogue. When a party approaches the mediation center, how to interact with the parties, how to drive the parties to settle the dispute. We have given 3 days training extensively, and also they were given certificates from the Telangana State Legal Service Authority. They are well trained. I request all of you to make use of these services of the community mediation volunteers and settle the disputes. What is used in settling the dispute before the community mediation elders? What we will get? What we will gain? We will gain time. Our money should not go waste. We will save our money.
they will not charge anything from the parties. पैसे कुछ भी नहीं लेते, पानी भी उन्हें प्रोवाइड कर देते, समय बर्बाद नहीं होता, जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं इधर। अभी कोर्ट को गए तो एडवोकेट को फीस देना, कोर्ट फी भरना है, एडजॉर्नमेंट के एडजॉर्नमेंट से कोर्ट को जाना है, कितना पैसा खर्चा होता, कितना टाइम वेस्ट होता। अगर कुछ डिस्प्यूट है तो वाइफ एंड हस्बैंड डिस्प्यूट और मनी डिस्प्यूट्स और आजू बाजू में झगड़ा हुए तो पुलिस स्टेशन को चले जाते। एक लीडर को साथ में लेके जाना, लीडर को बिरयानी खिलाना, लीडर को ये खिलाना वो खिलाना, नहीं तो फ्रीज तो नहीं आते ना लीडर। पुलिस स्टेशन को जाना है तो एक लीडर को पकड़ के जाना, उनको पैसे देना, खिलाना, ये सब नहीं रहता। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट आ जाइए सेंटर को, एक एप्लीकेशन दे दीजिए, वो एप्लीकेशन में आपको क्या होना लिखिए, वो एप्लीकेशन पढ़ने के बाद दूसरी पार्टी को बुलाते, दोनों को बिठा के समझाते कैसा रहना, कैसा जीना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करे तो क्या लाभ है, वो सब बोल देते। कम्युनिटी वॉलंटरी मीडिएशन वॉलंटियर्स, दिस विल बी मोस्ट यूजफुल थिंग, प्लीज यूटिलाइज दिस। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रेसिडेंट साहब से, आपकी फ्राइडे की प्रेयर्स में प्लीज make a publicity about this community mediation, request them to utilize the community mediation center so that they can get benefits very easily. Thank you. I convey my thanks to all the participants and elders who are here and who are behind this establishment of this center. I congratulate all of them. Thank you. जो कि डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज हैं और मेंबर सेक्रेटरी हैं तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी के, एंड आई आल्सो वेलकम सीनियर जज एंड सेक्रेटरी श्रीमती कलार्चना गारू। मैं बहुत खुशी से ये ऐलान कर सकता हूँ कि ये ओल्ड सिटी का पहला मीडिएशन सेंटर जो खोला गया और शिया कम्युनिटी से वाबस्तगी है दोनों मीडिएटर्स की, खिबला अमर साहब और अतर हुसैन साहब जो शहजूर के नाम से भी मशहूर है। ये लोग के अंदर पहले बहुत काबिलियत थी और अब उससे ज़्यादा काबिलियत बढ़ गई है क्योंकि वो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं। पहले वो जो मीडिएशंस करते थे वो स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन नहीं थे, अब वो कानूनी गुंजाइश में वो लोग बराबर मुकम्मल ट्रेनिंग ले चुके हैं और इनको जुडिशियल सपोर्ट भी रहेगा। मतलब एक कानूनी जो गुंजाइश रहती है एक मीडिएटर के सपोर्ट की, वो बराबर मिलते जाएगी। और पहले जो ये लोग मीडिएशंस करते थे या काउंसलिंग करते थे उसको कोई लीगल सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे एक प्रोसीजर है जिससे ये लोग जो है लोगों को इस्तेफादा पहुंचा सकते हैं। और कानूनी गुंजाइश में ये है कि अगर कुछ पार्टीज बहुत कंटेंगरस रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े के रहते हैं, वो एक मीडिएटर्स पे भी कंप्लेंट कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी कम्युनिटी मीडिएटर्स की ये है कि ये लोग को जो है कानूनी सपोर्ट रहेगा। कल के दिन कुछ भी अगर दोनों में बाद में लड़ाई हो रही है तो वो कम्युनिटी मीडिएटर को इंक्लूड नहीं कर सकते। और सबसे बेहतर बात ये है कम्युनिटी मीडिएशन की कि जो आपका ट्रेडिशन है उसी तरीके से ये कम्युनिटी मीडिएटर्स आपको मीडिएट करेंगे, क्योंकि हर कौम का एक अलग अपना ट्रेडिशन होता है, अलग सोच होती है। तो जो एक्ट भी आया है, कम्युनिटी मीडिएशन एक्ट भी आ गया है अभी, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वो फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कोर्ट्स ओवरलोड हो रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे कि मिसकम्युनिकेशन छोटा मोटा भी हुआ तो वो कोर्ट को आ जा रहे हैं, कोर्ट भी ओवरबर्डन हो रहे हैं इस चीज़ से। एंड लोगों का, जैसा पंचायत श्री साहब ने कहा कि आपका वक्त, आपका पैसा और गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं और ख़ानदानों में लड़ाई और बढ़ जाती है। और ये मीडिएशन सेंटर्स में आप
साहब ने कहा कि बाप बेटों की लड़ाई, माँ बेटों की लड़ाई, ये सब भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अभी किसी साहब ने पूछा कि हम प्री काउंसलिंग कर सकते हैं। हाँ, बराबर आप लोग प्री काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो शादियां हो रही है, लोग शादी की लड़ाई ज्यादातर जो खर्च कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं 50 लाख की, 25 लाख की, जब शादी टूट रही है तो आपको जो है शादी टूटने का गम नहीं है, वो पैसे खर्च करने का गम है। तो इसीलिए ज्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी एक साहब ने जो पूछा है कि प्री काउंसलिंग, बराबर प्री काउंसलिंग में आप दोनों खानदानों को समझा सकते हैं कि भाई आप खर्चे मत करो, सिंपल तरीके से शादी कर लो। जितना आप सिंपल तरीके से शादी करेंगे उतना ही आप झगड़ों से बचेंगे, क्योंकि 1000 के सामने जब आप बारात निकालेंगे, जब आपका डिस्प्यूट होगा तो वो 10,000 के सामने निकलेगी, तो आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी एंड आप घर का घर में ही खत्म कर सकते हैं। तो साहब ने अच्छा पॉइंट रेज किया और पंचायत साहब ने भी जवाब दिया उसका कि वो कर सकते हैं, क्योंकि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इनकी बात में एक वजन है कि प्री काउंसलिंग के लिए भी एनकरेज कर रहे हैं। तो आप लोग दीगर आपके कौम के लोग को बता सकते हैं कि यहाँ पे प्री काउंसलिंग भी होती है। अगर किसी का प्रपोजल अगर जमा है शादी के लिए तो दोनों खानदान यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों को जो है मौलाना अमर साहब भी है जो कि शरीयत की रोशनी में भी जो है बात करते हैं वो, एंड अतर हुसैन साहब है जिसको दुनियावी चीज़ों से भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये लोग काफ़ी गाइड कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ। और साहब ने हमारे ताउन किया इस जगह का, मुजाहिद साहब का बहुत बड़ा दिल है कि कौम के लिए इन्होंने जो है जो ताउन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल, वक्त तो दूर की बात है, लोग मिलते भी नहीं, तो आपने जो है अपनी जगह का ताउन किया है, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको भी, बेहद शुक्रिया। एंड आप लोग से तवक्को है कि जो है जहां पे भी लिटिगेशन होगा वो आप लोग जो है मीडिएशन सेंटर को रेफर करेंगे। शुक्रिया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात जानते हैं कि बहुत से काम जो हमारी ये नई नस्ल कर रही है, जिसमें इस न्यू जनरेशन के हिस्से को एक ख़ास अहमियत देनी चाहिए। अभी हो रहे हैं, आइंदा भी होते हैं। लिए जब तक कि हमारी कम्युनिटी से नौजवान आगे नहीं आएंगे और सुलझे हुए लोग, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा है कि किसी भी चीज़ को उलझाना आसान है और सुलझाना मुश्किल काम है। एक बिल्डिंग को तोड़ने के लिए एक बम लगा दीजिए, ब्लास्ट कर दीजिए, बिल्डिंग टूट जाएगी, मगर बनाने के लिए बम लगाने से बिल्डिंग बनती नहीं है। उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी तामीर के लिए वक्त दरकार होता है। तामीरी काम हमेशा वक्त चाहता है, तामीरी काम हमेशा मजबूत भी होता है। ये जो काम मीडिएशन हजरात की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ख़ुद जज साहब मौजूद हैं, दो बातें यहाँ पर नज़र आती हैं। एक बात ये कि मुस्तक़बिल को और फ्यूचर को पेश नज़र रख कर जो काम होने ज़रूरी है उसकी इब्तिदा अली नगर कॉलोनी से हो रही है, और ये अली वाले ही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे ओल्ड सिटी में हमने इस काम को अली नगर कॉलोनी से शुरू किया। अभी जज साहब ने भी कहा कि ये पहला ऑफिस होगा जो इस जगह पर खोला जा रहा है, और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया कम्युनिटी के लिए है या अहले सुन्नत कम्युनिटी के लिए, द होल कम्युनिटी ऑफ इंडियंस, क्योंकि हम अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई और भी आता है तो उसका भी इस्तेमाल करें, उसको भी वेलकम करें। और ये मसाइल चाहे उनके पास हो या हमारे पास हो, ये डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं वो हल हो जाने चाहिए। दूसरा मसला जो बहुत ही तवज्जो का मरकज़ है वो ये कि ख़ुद जज साहब का यहाँ आना इस बात की निशानदेही करता है कि ये मौजू और ये इशू कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ केसेस दाखिल होते हैं, फिर तारीख़ पे तारीख़ मिलती जाती है और फिर काम बढ़ता जाता है। ये और बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा वक्फ बोर्ड का जो है वक्फ का एक्ट का मसला किसी हद तक हल, कल दोबारा फिर बैठेंगे और हल करेंगे मसले को।
तो डेट्स मिलते जाते हैं आपको। लेकिन अगर यहाँ पर कौम के सुलझे हुए लोग, समझदार लोग आगे आए और काउंसलिंग करें, और अभी मुजाहिद भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल वो अब्बा जानिब है मुश्तबा भाई ने, कि बहुत अच्छा सवाल है कि भाई अगर प्री काउंसलिंग हो जाए तो कहते हैं भाई कोई चीज़ बिगड़ने से पहले ही सुधार लो। मैं अपने लिए बात चीज़ें अचीवमेंट समझता हूँ। जब मैं यूरोप में था, पेरिस में था, तो वहाँ पर निकाह से पहले हमने कानून बना दिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड फेडरेशन का भी कानून बन गया है और अफ्रीका फेडरेशन ने भी उसे एक्सेप्ट किया है। वो ये कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों एक एक घंटा मौलवी के पास जाएंगे। दुल्हन जाकिरा और आलिमा के पास जाएगी, दूल्हा आलिम के पास जाएगा जो रेसिडेंट आलिम होगा। वो शादी से पहले 1 घंटा उनकी काउंसलिंग करेगा कि शादी में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, क्या हुकूक है तुम्हारे, क्या तुम्हें करना है, ताकि वो लड़का और लड़की मेंटली प्रिपेयर हो अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए। और अब ये कानून बन गया कि जब तक आलिम दीन लिख कर नहीं देगा कि इन्होंने कुछ घंटे मेरे साथ गुजारे हैं, वहाँ निकाह इनका होता ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इस चीज़ को इतनी अहमियत दी जा रही है कि काउंसलिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें वही हजरात कर सकते हैं जिनको कौम का दर्द हो, जिनको अपनी मिल्लत का दर्द हो, जो लोग ये समझते हो कि इस काम को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। मैंने जैसे कहा, जज साहब का खुद यहाँ आना इस बात की दलील है कि ये मैटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर कम्युनिटी के लिए। और हमारे लिए इफ्तिखार ये है कि हमारी कम्युनिटी में अल्लाह का शुक्र है कि इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हैं। अगर हैं भी तो उसको हम बैठकर हल कर सकते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत से मसाइल हैं जो हम लोग आपस में मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ इस कम्युनिटी का जो यहाँ पर नए ऑफिस का क़याम अमल में आया है, जज साहब का और तमाम वो अरकान वो मुंतज़िमीन जो इस काम को यहाँ अंजाम देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। हम उलमा का तो काम ही है कि आप हजरात की हौसला अफजाई करना, हर नेक काम में, हर अच्छे काम में हम आपके साथ हैं। और फिर जज साहब ने जैसा कहा कि जुमे की नमाज में या खुतबे वगैरह में या जहाँ पर भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स होते हों, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस का ये काम करें ताकि उनमें बेदारी पैदा हो, और इस तरह के मसाइल को कोर्ट तक जाने से पहले एक मरतबा घर ही में हल कर लिया जाए। क्योंकि बाज़ मरतबा ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ घर में भी लड़ाई होती है तो कहते हैं आहिस्ता बोलो, पड़ोसी सुन रहा है, दीवार के भी कान होते हैं। ये अल्फाज जो बोले जाते हैं कि यानी घर के मसाइल घर के अंदर ही हल हो जाए, बाहर तक ना जाए। तो कितना अच्छा है कि कम्युनिटी के मसाइल कम्युनिटी में हल हो जाए, बाहर ना जाए। और ये अफसोस होता है कि कम्युनिटी के मसाइल को लोग बाहर ले जाकर इसको इशू बनाते हैं। इशू नहीं बनना चाहिए। हमारे आपस के मसाइल हैं, हम आपस में मिल बैठ कर हल कर लेंगे, और मिल बैठ कर हल होना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो है जो कम्युनिटी को तरक्की देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ जितने पैनल में लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से जज साहब का। गॉड ब्लेस यू सर, एंड वी आर थैंकिंग यू रियली दिस द अप्रिशिएटेबल प्रोग्राम फ्रॉम आवर साइड। गॉड ब्लेस यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं कि अभी हमारे पास एक मीडिएशन जो है ऑफिस ओपन हो रहा है, यहाँ पर खुल रहा है। ये सिर्फ इस वजह से कि हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे श्री पंचाक्षरी सर, डिस्ट्रिक्ट एंड जो है सेशन जज, मेंबर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, इनकी जानिब से और इनके जो सीनियर्स हैं यानी जो दीगर जजेस हैं, उनकी तरफ से ये लिया गया है फ़ैसला कि हर कम्युनिटी में बाज़ाब्ता एक जो है मीडिएशन सेंटर खोला जाए ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए जो है काम किया जा सके। तो मेरे सामने भी एक बात रखी गई थी कि हम आपकी कम्युनिटी में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं। जैसे शादी होने के बाद आजकल जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि खुला तलाक़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे ही जो है शादी हो 2-3 महीने के अंदर लोग जो है पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, वहां से फिर जो है कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो उसमें एक तो ये कि वक्त की बर्बादी है, दूसरे पैसे की बर्बादी है, तीसरे फिर जो है इख्तलाफात और रिश्तेदारियों में आपस में इख्तलाफात और खटास।
तो ये तमाम चीज़ों से बचने की खातिर ये एक मीडिएशन सेंटर खोला गया है, ताकि यहाँ पर जो है लोग रुजू हों, अपने अपने मसाइल को पेश करें और बेहतर अंदाज में यहाँ पर मसाइल को जो है इंशाल्लाह यहीं पर बैठ कर जो है आराम से सुलझा सकें और बेहतर अंदाज में उसका नतीजा निकाला जा सके। लिहाजा यहाँ पर एक मीडिएशन सेंटर खोला गया है, जिसमें जो है मैं हूँ और हमारे अतहर हुसैन साहब जो कोठी में रहते हैं वो भी हैं। हम दोनों यहाँ पर सैटरडे और संडे हफ्ता इतवार दोपहर में 4 से 6 बजे तक यहाँ पर रहते हैं, ऑफिस पे रहते हैं। जो भी मसाइल होते हैं लोगों के इंशाल्लाह उन मसाइल को हम लोग बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ता है जो है मसाइल को अपने एतबार से जैसे हो सकता है बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। और साथ ही साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि अभी इंशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारे श्री पंचाक्षरी सर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, और फिर यहाँ पर इंशाल्लाह बाज़ाब्ता वो अपने जो है अग़राज़ व मक़ासिद को बयान करेंगे और अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से अवेयरनेस लाया जाए वो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है सिर्फ शिया कम्युनिटी के लिए और किस ये असल तो देखा जाए तो शिया कमेटी इसलिए कि हर कमेटी के जो अफराद जो है 3 दिन वहाँ पर जो है बाज़ाब्ता हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। हम लोग को जो है बाज़ाब्ता प्रैक्टिस दी गई है, 3 दिन तक क्लासेस ली गई है हम लोग की सुबह से शाम तक। उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट भी दिया गया है और हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग अभी फ़िलहाल जो है लीगली एतबार से इसको जो है मसाइल को हल कर सकते हैं। ये जो लोग आपके पास रुझे होंगे इन लोगों को कितने दिन के लिए काउंसलिंग मिल जाती है? अब वो देखा जाएगा कि मसाइल कैसे हैं, उन मसाइल पे किस तरीके से गुफ्तगू की जा सकती है, कितना वक्त लगेगा वो तो बहरहाल मसाइल के सामने आने के बाद ही बात होगी। अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूं कि हर कम्युनिटी में हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वहाँ पर, और हर कम्युनिटी वाले अपने अपने जो है कम्युनिटी में एक मीडिएशन सेंटर खोले हैं। तो हम लोग चूँकि शिया कम्युनिटी से थे तो हम लोगों ने भी अपनी जो है कम्युनिटी के लिए एक मीडिएशन सेंटर खोला है। इसके बावजूद अगर दीगर अक़वाम के लोग भी अगर आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जो है अहले हुनूत है, अहले सुन्नत है, या फिर दीगर जो है अपने ईसाई हैं या फिर दीगर अफराद हैं, तो दीगर मज़ाहिब के लोग भी अगर आते हैं तो हमको जो है उनको डील करने में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हमको जो है बाज़ाब्ता अप्रिशिएट किया जाएगा। और जैसे अब मीर चौक अपने पुलिस स्टेशन वगैरह है उसके अंदर हमारे अपने कम्युनिटी के कुछ केसेस अगर जाते हैं तो वो ख़ुद भी हमसे रुजू करेंगे और वो केसेस को हमें बेहतर अंदाज में हल करने के लिए हमसे कहेंगे।